ایک ایسی عورت جس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ بادشاہ بھی اسے سلام کرتے تھے۔ ایک ایسا تخت جو زمین پر سب سے شاندار تھا۔ ایک ایسی ملکہ جس نے سورج کو پوجا مگر اللہ نے اسے ہدایت دی۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں ایک ماتر ایسی عورت کا ذکر ہے جو کسی قوم کی حاکم تھی؟ وہ تھی ملکہ بلقیس، ملکہ سبا۔ آج ہم آپ کو ان کی وہ کہانی سناتے ہیں جو سورہ النمل میں اللہ نے بیان کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے ایک خاص واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعے میں ایک عورت کا تذکرہ آتا ہے جو نہ صرف ایک ملکہ تھی بلکہ ایک شکتیشالی شاسک تھی۔ اس کا نام بلقیس تھا۔ وہ سبا کی ملکہ تھی، یعنی ملکہ سبا۔ یہ ملک آج کے یمن کے دکشنی حصے میں تھا، ایک ایسا علاقہ جو اپنی دولت، اپنی طاقت اور اپنی ترقی کے لیے مشہور تھا۔ بلقیس کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی تھیں، ایک بہت بڑا شاندار تخت، قوم کی طاقت اور وقارباری، دولت کی بھرمار، اور سب سے بڑی بات ایک ایسی حکمت اور عقل جو بادشاہوں کو بھی حیران کر دیتی تھی۔ قرآن میں ہدہد یعنی ہوپو پکشی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے پایا ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے۔ بلقیس کوئی معمولی عورت نہیں تھی، وہ ایک پوری قوم کی رانی تھی جو بنا کسی مرد کے ساتھ مل کر اکیلے حکومت کرتی تھی۔ مگر ان کی سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ وہ اور ان کی قوم سورج کی پوجا کرتی تھی، شرک میں مبتلا تھی۔ اب کلپنا کیجئے ایک ایسا بادشاہ جس کا ملک نہ صرف زمین پر پھیلا تھا بلکہ ہوا، زمین اور آسمان تک اس کے حکم میں تھا۔ ایک ایسا نبی جسے اللہ نے ایسی نعمتیں دی کہ انسان، جن، جانور اور پکشی سب اس کے حکم کے تابعدار تھے۔ یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انوکھی حکومت، ایک ایسی حکومت جو قرآن میں اللہ نے ہمیں بتائی ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ اصلی طاقت اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت کا وارث بنایا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا، اے لوگوں، ہمیں پکشیوں کی زبان سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز سے دیا گیا ہے، بے شک یہ بڑا کھلا فضل ہے۔ اللہ نے انہیں ایک ایسا انوکھا ملک دیا جو نہ پہلے کسی کو ملا تھا اور نہ بعد میں کسی کو ملے گا۔ سب سے پہلے ہوا ان کے حکم میں تھی، صبح اور شام میں مہینے بھر کا سفر طے کرنے والی ہوا ان کے لیے سرکش ہو کر چلتی تھی، جہاں وہ چاہتے ہوا انہیں لے جاتی۔ پھر جن ان کے تابعدار تھے، شیطانوں سے لے کر اچھے جن تک سب ان کے حکم میں کام کرتے۔ وہ ان کے لیے محل بناتے، تانبے کی ندیاں بہاتے اور بڑے بڑے کام انجام دیتے۔ اگر کوئی نافرمانی کرتا تو آگ کی سزا ملتی۔ اور سب سے حیرت انگیز، پکشیوں، جانوروں اور کیڑوں کی زبان سمجھتے تھے۔ ان کی فوج میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کی فوج اور پکشیوں کی فوج بھی شامل ہوتی تھی۔ یہ سب ایک ساتھ قطاروں میں کھڑے ہوتے جیسے کوئی بڑی سینا۔ قرآن فرماتا ہے، اور سلیمان کے لیے ان کے لشکر اکٹھے کیے جاتے تھے، جنوں سے، انسانوں سے اور پکشیوں سے، اور انہیں قطاروں میں بانٹا جاتا تھا۔ یہ نعمتیں صرف طاقت کے لیے نہیں تھیں بلکہ اللہ کی عبادت اور ہدایت پھیلانے کے لیے تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ انوکھا ملک دیکھ کر بلقیس جیسی شکتیشالی ملکہ بھی حیران رہ گئیں۔ مگر اصلی چمتکار تو ابھی آنے والا تھا۔ ایک اتنی بڑی فوج جہاں انسان، جن اور ہزاروں پکشی قطاروں میں کھڑے ہیں، سب اپنے اپنے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر اچانک ایک چھوٹا سا پکشی غائب ہے، نہ قطار میں ہے، نہ پاس ہے، نہ آواز ہے۔ وہ پکشی تھا ہدہد، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس غیر موجودگی کو ترنت نوٹس کر لیا، کیونکہ ان کی حکومت میں کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز چھپ نہیں سکتی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے پکشیوں کو تلاش کیا اور کہا، مجھے ہدہد کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ کیا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے؟ یا تو وہ میرے پاس کوئی صاف ثبوت لائے، ورنہ میں اسے سخت عذاب دوں گا یا پھر اس کی گردن مار دوں گا۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ حضرت سلیمان کتنے سخت حاکم تھے۔ ہدہد ایک چھوٹا لیکن بہت چالاک اور تیز اڑنے والا پکشی تھا، ہوپو۔ وہ دور دور تک کی خبریں لاتا تھا۔ اللہ نے اسے ایسی خاصیت دی تھی کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ جب ہدہد غائب ہوا تو حضرت سلیمان نے ترنت تفتیش شروع کر دی۔ یا تو وہ میرے پاس کوئی صاف ثبوت لے کر آئے، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا۔ یہ باتیں سن کر سمجھ آتا ہے کہ انصاف بہت سخت تھا۔ چھوٹے سے چھوٹے جیو کو بھی جواب دہ ٹھہرایا جاتا تھا، اور سب سے بڑی بات، اللہ نے اس چھوٹے سے پکشی کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے چنا تھا۔ مگر سوال یہ ہے، آخر ہدہد کہاں گیا تھا؟
क्या वो सचमुच गलती से गायब हुआ था या अल्लाह ने उसे एक खास मकसद के लिए भेजा था? जवाब बहुत जल्द आने वाला है और वो जवाब इतना हैरत अंगेज होगा कि पूरी फौज हैरान रह जाएगी। हुदहुद ने जो रिपोर्ट दी वो सिर्फ एक मलिका और उसकी दौलत की नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी हकीकत की थी। एक ऐसी गलती जिसे अल्लाह ने कुरान में साफ साफ बयान किया, वो थी सूरज की पूजा, शिर्क। अल्लाह की जगह किसी मखलूक को सजदा करना। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे एक पूरी कौम इस भटकाव में पड़ गई थी? हुदहुद ने अर्ज की, मैंने वहाँ एक औरत को उन पर हुकूमत करते पाया है और उसके पास एक बहुत बड़ा तख्त है। मैंने उसे और उसकी कौम को पाया कि वो सूरज को सजदा करते हैं अल्लाह के बजाय, और शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए जीनत दी है। सूरज जो अल्लाह की एक नेमत है, एक मखलूक है, उसे अल्लाह की जगह पूजना ये सबसे बड़ा जुल्म है। तफसीर में आता है कि ये शिर्क उनकी पुरखों की रिवायत से चला आ रहा था। शैतान ने उन्हें ये भ्रम दिया कि ये पूजा उनकी तरक्की का राज है, मगर हकीकत ये थी कि वो अल्लाह की हिदायत से महरूम थे। कुरान हमें ये सबक देता है कि शिर्क कितना भी पुराना या खूबसूरत लगे, वो इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। अल्लाह फरमाता है, सूरज और चांद को सजदा मत करो, बल्कि अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया। बल्कीस जैसी हिकमत वाली औरत, इतनी ताकत वाली मलिका, फिर भी इस गलत अकीदे में फंसी हुई थी। ये हिस्सा हमें याद दिलाता है कि असली ताकत और नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं और असली कामयाबी तो तौहीद में है। एक पूरी कौम सूरज को पूज रही है, शिर्क में डूबी हुई है, मगर अल्लाह की रहमत कभी बंद नहीं होती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि इस गुमराही को खत्म करना है। उन्होंने एक खत लिखा, न सिर्फ एक खत बल्कि दावत तौहीद का पैगाम, और वो खत इतना सादा लेकिन इतना ताकतवर था कि बाद में पूरी कौम हिल गई। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा खत लो और उन्हें दे दो, फिर उनके पास से हट जाओ और देखो कि वो क्या जवाब लौटाती हैं। कुरान में अल्लाह ने खुद उस खत का लफ्ज बयान किया है, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तुम मेरे पास घमंड ना करो और मेरे पास मुसलमान होकर आ जाओ। ये खत हुदहुद ने अपनी चोंच में लेकर सबा की मलिका बल्कीस तक पहुंचाया। एक छोटा सा पक्षी, एक बड़ा पैगाम, जिसने एक शक्तिशाली मलिका और उसकी पूरी कौम के दिलों में हलचल मचा दी। दावत इस्लाम हमेशा सादगी, हिकमत और अल्लाह के नाम से शुरू होनी चाहिए। और सबसे ताकतवर हथियार अल्लाह का कलाम है, कुरान की आयतें। एक छोटा सा खत बिस्मिल्लाह के साथ शुरू होने वाला, और उसमें सिर्फ एक हुक्म, घमंड छोड़ो और मुसलमान होकर आ जाओ। ये खत जब बल्कीस के हाथ लगता है तो वो घबरा नहीं जाती, बल्कि वो अपनी हिकमत और अक्ल दिखाती हैं। अब वो अपनी कौम को बुलाती हैं और मशवरा मांगती हैं। क्या आप जानते हैं कि असली हिकमत क्या होती है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसने बल्कीस ने कहा, ऐ सरदारों, मेरे पास एक बहुत सम्मानित खत आया है। ऐ मेरे लोगों, मुझे एक बड़ा फैसला करना है, तुम मेरी राय दो। मैं कभी किसी काम में तुम्हारे बिना फैसला नहीं करती, ये बात बहुत बड़ी है। फिर उनकी कौम ने जवाब दिया, हमारे पास बहुत ताकत है और बहुत बड़ी फौज है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, मगर फैसला तुम्हारा है। उन्होंने कहा, जब बादशाह किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो वो उसे तबाह कर देते हैं और उसके इज्जतदारों को जलील बना देते हैं, मगर मैं उन्हें कुछ हदिया भेजना चाहती हूँ, फिर देखूंगी कि रसूल क्या लौटाते हैं। युद्ध से पहले बातचीत पसंद करती थी, पहले सुलेमान की असलियत परखना चाहती थी, घमंड नहीं किया बल्कि हिकमत से काम लिया। मशवरा लेना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, और सबसे बड़ी बात, बल्कीस की ये हिकमत ही उन्हें हिदायत के करीब ले गई। बल्कीस ने युद्ध का रास्ता नहीं चुना, न ही तुरंत झुक गई। उन्होंने एक बहुत चालाक कदम उठाया, एक ऐसा हदिया भेजा जो किसी भी बादशाह को ललचा दे, दौलत, जवाहरात और ऐसी चीजें जो दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमतों को भी हैरान कर दे। क्या ये हदिया सुलेमान अलैहिस्सलाम को प्रभावित कर पाएगा या ये उनकी असली ताकत का इम्तिहान बन जाएगा? बल्कीस ने अपनी कौम के सरदारों से मशवरा लिया और फिर एक बहुत बड़ा और शानदार हदिया तैयार किया। तफसीर और रिवायतों में आता है कि ये हदिया था बहुत सारे कीमती जवाहरात, मोती, सोने चांदी के बड़े तोहफे, दुर्लभ मसाले और महंगे इत्र। बल्कीस सोच रही थीं, अगर ये सुलेमान सिर्फ एक बादशाह हैं, तो वो इस हदिया से खुश होकर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। बल्कीस ने हदिया एक बड़े काफिले के साथ भेजा, दूतों के साथ, ऊंटों पर लादकर, बहुत शानो शौकत से। ये हदिया इतना भारी और कीमती था कि रास्ते में ही लोग हैरान हो रहे थे, मगर ये चालाकी का पहला कदम था। क्या वो सिर्फ ताकत और मुल्क हासिल करना चाहते हैं या वो सचमुच हिदायत और तौहीद फैलाना चाहते हैं?
और बल्कीस की ये चालाकी ही उन्हें हिदायत के और करीब ले गई, क्योंकि वो सच को परखना चाहती थी। एक बहुत बड़ा हदिया, जवाहरात से भरा, दौलत से लबालब, किसी भी बादशाह के लिए ये लालच की सबसे बड़ी परीक्षा होती। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये हदिया देखा तो उन्होंने इसे ना सिर्फ ठुकरा दिया बल्कि एक ऐसा जवाब दिया जो बल्कीस के दिल में हलचल मचा गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब वो आए तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे दिए हुए से कहीं बेहतर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हदिया को देखते ही फरमाया, क्या तुम मुझे माल देकर मदद करना चाहते हो? अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वो तुम्हारे इस हदिये से बहुत बहुत बेहतर है। फिर उन्होंने और सख्त हुक्म दिया, जाओ उनके पास वापस लौट जाओ, हम ऐसी फौज लेकर उनके पास आएंगे जिसके मुकाबले में वो बेबस रह जाएंगे। पहले हदिया को पूरी तरह ठुकरा दिया क्योंकि नबी लोग दौलत के लालची नहीं होते। फिर साफ कहा कि अल्लाह की दी हुई नेमतें तुम्हारी दौलत से कहीं ज्यादा हैं। और आखिर में धमकी दी, अगर तुमने तौहीद कबूल नहीं की तो हमारी फौज आएगी और तुम्हें जलील करके निकालेंगे। मगर ये धमकी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, ये एक आखिरी मौका था। हिदायत कबूल कर लो वरना नतीजा बुरा होगा। असली ताकत दौलत में नहीं, अल्लाह की नेमतों और ईमान में है। नबी लोग कभी रिश्वत या हदिया से प्रभावित नहीं होते। और जब कोई घमंड करता है तो अल्लाह की तरफ से सख्त हुक्म आता है, मगर पहले हिदायत का रास्ता भी दिखाया जाता है। हदिया ठुकरा दिया गया, धमकी दे दी गई। अब बल्कीस के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो युद्ध का सामना करो या हिदायत कबूल करो। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि पहले एक ऐसा मौजज़ा दिखाया जाए जो बल्कीस के दिल में शक की आखिरी दीवार भी तोड़ दे। एक ऐसा चमत्कार जो इंसान की समझ से बाहर था, बल्कि इसका तख्त एक पल में उनके सामने हाजिर। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसने सुलेमान ने कहा, ऐ सरदारों, कौन है जो मेरे पास उसका बल्कीस का तख्त लाए, इससे पहले कि वो मेरे पास मुसलमान होकर आए। फिर एक बहुत ताकतवर जिन ने कहा, मैं उसे तेरे पास लाऊंगा, इससे पहले कि तू अपने स्थान से उठे। मगर एक और शख्स जिसे इल्मे किताब था, उसने कहा, मैं उसे तेरे पास लाऊंगा इससे पहले कि तेरी पलक झपके। और बस एक पल में बल्कीस का तख्त, जो यमन में सैकड़ों मील दूर था, सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हो गया। अल्लाह फरमाते हैं, जब उसने उसे अपने सामने रखा हुआ देखा तो कहा, ये मेरे रब की मेहरबानी है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। एक पल में सैकड़ों मील दूर का भारी तख्त लाना, वो भी बिना किसी नुकसान के, बिना किसी मेहनत के। हजरत सुलेमान ने तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है। अब आखिरी इम्तिहान बाकी था, जब बल्कीस खुद आई और सुलेमान के महल में दाखिल हुई और उनके सामने एक ऐसा फर्श था जो पानी जैसा लग रहा था। बल्कीस का तख्त एक पल में हाजिर हो चुका था। ये मौजज़ा देखकर उनकी हिकमत वाली ज़हनियत अब हिल चुकी थी। अब वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आई, मगर अल्लाह ने उनके लिए आखिरी इम्तिहान तैयार किया था। शीशे का फर्श जो पानी जैसा लग रहा था, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पल क्या हुआ? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब उसने यानी बल्कीस ने उसे देखा तो समझा कि वो पानी है, तो उसने अपने पैर ऊपर उठा लिए। उसने कहा, ये तो चिकना कांच का फर्श है, ये सराहे कवारीर शीशे का महल बहुत खास था। बल्कीस को अपनी गलत फहमी का एहसास हुआ। वो समझ गई कि जिस तरह उन्होंने फर्श को पानी समझ लिया, उसी तरह वो और उनकी कौम सूरज को माबूद समझकर गलत फहमी में पड़ गई थी। फिर बल्कीस ने तुरंत कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया था और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह के सामने सर झुकाती हूँ। एक शक्तिशाली मलिका जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी, अब अल्लाह के सामने सर झुका रही थी। अल्लाह छोटे छोटे इम्तिहानों से भी दिलों को हिदायत देता है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। शीशे के फर्श पर गलत फहमी दूर हुई, दिल की आंखें खुल गईं। एक शक्तिशाली मलिका, अब वो समझ गई कि असली ताकत अल्लाह के पास है। अब वो अल्लाह के सामने सर झुकाने वाली थी। ये था वो पल जब एक पूरी कौम की मलिका ने तौहीद का ऐलान किया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसने यानी बल्कीस ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया था और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह के सामने सर झुकाती हूँ। ये कलिमा बहुत बड़ा था। बल्कीस ने अपने शिर्क का इकरार किया, तौबा की और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ इस्लाम में शामिल हो गईं।
ये सिर्फ एक औरत का इस्लाम नहीं था, ये एक पूरी कौम की हिदायत का दरवाजा खुलना था। कुरान ने इस कहानी को इसलिए बयान किया ताकि हम सीखें, कितनी भी बड़ी ताकत हो, असली कामयाबी तो अल्लाह की हिदायत और तौहीद में है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत कामयाब हुई। हुदहुद की छोटी सी रिपोर्ट ने एक बड़ी तब्दीली ला दी और बल्कीस जैसी हिकमत वाली मलिका ने आखिरकार वो कलिमा पढ़ा जो हर मुसलमान का कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये थी मलिका बल्कीस की कहानी। अल्लाह हमें भी ऐसी हिकमत दे, ऐसी तौबा दे और ऐसी तौहीद पर कायम रखे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और दूसरों तक पहुंचाएं।